कैसे हो दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट यू नो दैट वेरी वेल इन लेक्चर और लास्ट पोर्शन दैट मीन्स चैप्टर नंबर 2। तो हमने चैप्टर नंबर 2 को कवर किया। स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 2 एक मिक्सिंग मसाला चैप्टर है। इजी 2 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही सुप्रीम पंच मारना है, डायमेंशंस एंड एरर। वो 2 पॉइंट्स आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए और हमने उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस की है। तो चैप्टर 2 है वो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स के लिए और आई कैन से दैट सभी सब के लिए कॉमन सा मेंबर है। तो सब जगह चैप्टर 2 अभी आपने देखा होगा, चलता होगा और मज़ा भी आता है। मगर आपका रियल लॉजिक जो टेस्टिंग है वो अब शुरू हो रहा है। यहाँ से एग्जैक्ट फिजिक्स शुरू हो रहा है। एग्जैक्ट फिजिक्स का मतलब है एक एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी हो सकती है। तब अपन लोग इंडिविजुअल टॉपिक पे जाने वाले। चैप्टर 2 में क्या था, सभी टॉपिक्स का मिक्सिंग फंडा था। उसमें स्पीड भी आए, एक्सीलरेशन आए, विस्कोसिटी आए, प्रेशर आए, फोर्स आए, सब कुछ। अब अपन लोग एक एक टॉपिक को अच्छी तरह खंगा लेंगे, इवेल्यूट करेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे एंड फ्रॉम टुडे आई कैन से बी रेगुलर, बी हार्ड वर्कर एंड डोंट फॉरगेट, थिंक अबाउट ऑलवेज वी कैन से दैट लॉजिकल क्लियरेंस। ये सभी चैप्टर्स ऐसे हैं, यहाँ से अगर इसमें आपने जरा भी लॉजिक अप्लाई नहीं किया, मतलब ये सब चैप्टर आपके ऊपर नाग बन के डोलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स को ये मोशन वर्ड आता है, धीरे से स्लो मोशन, वहां से लूज मोशन तक चले जाते हैं। सो बी अलर्ट। बाकी मजा ऐसे चैप्टर्स है और यहाँ से हर एक स्टूडेंट्स और हर एक जो सर है उसका वन टाइप ऑफ टेम्परामेंट, पावर, कंसिस्टेंसी और लॉजिकल पावर की, जिसे कह सकते हैं कि वन टाइप ऑफ टेस्ट शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, फ्रॉम टुडे 2 to 3 पॉइंट्स वेरी आईएमपी। जो लेक्चर चले उसमें जितना भी पॉइंट है उसको 2 बार होमवर्क में लिख के सोल्व करो बराबर। जो न्यूमेरिकल्स इधर चले उसको अपने आप ट्राई करनी है। ओके, सो चैप्टर नंबर 3, मोशन इन 1D फॉर डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। So friends, here you can see linear motion. This motion in 1 dimension, it is also called linear motion. It is called straight direction motion, straight motion. If you perform motion or anybody perform motion in straight line, then it is called linear motion. There is another name. It is called translatory motion. Translatory motion. Translate उसके ऊपर से ट्रांसलेटरी मोशन। सो लिनियर मोशन is also called translatory motion. What do you mean by linear motion? So just to understand this word, concentration required. You can see there is a body, and this body is made up by lots of particles. You know that. I have represented only 4 particles, but there are innumerable number of particles are present inside this body. Now, if this body performs linear motion, or if this body performs motion in such a way that each and every particle of the body, each and every particle of body travels same distance in a given time interval, then this body performs linear motion or translatory motion. Once again, what do you mean by linear motion? If a given body performs motion in such a way that linear distance traveled by this each particle of the body remains same for given interval of time, then the body has performed linear motion. For example, this is situation or position number 1, and now this is the position number 2 of the body. Initially body is situated here, after some time body suppose situated here. So whenever body moves or body perform motion in such a way that you can see this particle 1, particle 2, this particle 3 and particle 4. 1, 2, 3, 4. These 4 particles, I am representing 4. Don't forget there are n number of particles. But you can see all particles of the body performs equal distance. So that means we can say that this body has traveled some motion or traveled some distance and has performed some motion. This motion of body is called linear motion. Once again, if body performs motion in such a way that all particles of body travel
equal distance or same distance in given time interval, then body has performed linear motion, or this type of motion of body is called linear motion or translatory motion. So keep in mind this translatory motion, it is also called simply one type of another motion, it is called rectilinear motion. You can see that rectilinear, तो ये rectilinear है. There are two types of translatory or linear motion. Number one rectilinear, recti, and number two curvy. This is called rectilinear. Linear motion के दो types, recti, curvy. This is called rectilinear motion. Rectilinear, that means the motion take place along a straight line. What do you mean by curvilinear motion? If this body performs motion in such a way that each and every particle perform this type of curvature type motion, भले curvature करे मगर distance तो same ही travel करेगा, then this type of motion of body is called curvilinear motion. Don't forget what do you mean by ट्रांसलेटरी मोशन. ये बेसिक बता रहा हूँ, डोंट वरी. आज मोशन का अपन लोग पीएचडी करने वाले हैं. पहले कोई आपको पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लिनियर, लिनियर मोशन का मतलब होगा मोशन इन 1D. ओके, then there are two, it is also called translatory motion. There are two types of linear motion. Number one rectilinear, number two curvilinear. But what do you mean by linear motion or translatory motion? Okay, so we start with the first of all definition of linear motion. If body performs motion in such a way, body performs motion in such a way that each particle of body travel equal distance, same distance in given time interval, then body has performed linear motion, or this type of motion of body is called linear motion. सभी particles जो टाइम इंटरवल है उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे पूरी बॉडी के सभी पार्टिकल्स, तो वो बॉडी की मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, स्ट्रेट डायरेक्शन देन रेक्टी, एंड कर्वेचर रिलेटेड मोशन देन कर्वीलिनियर. ये दोनों लीनियर मोशन के दो टाइप्स है. ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव डिस्कस्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन 1D. मोशन इन 1D का मतलब होगा rectilinear motion. You can see because straight that means linear motion का पहला टाइप आएगा rectilinear. Okay, you can see now we would like to think about one more important definition of motion. अगर ये आपको ना समझ में आए, easy no doubt, फिर भी अपन लोग एक और केस इधर देखते हैं. इधर देखो मैंने H लिखा है. H यानी हेतवी, हर्ष, हर्षिल, ऋतिक, जो भी H के नाम के जितने भी स्टूडेंट्स अपने हैं उसको आप कंसीडर कर सकते हो. तो इधर ये बंदा खड़ा है, 9 बजे का टाइम इधर है. थोड़ी देर के बाद सपोज आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद, ओके, सबसे पहले 9 बजे ये बंदा इधर खड़ा है, फिर आप देखते हो कि ओके बंदा इधर खड़ा है. 5 मिनट के बाद आप इधर आते हो घूम के कहां से, तो ये बंदा आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी एट 9:05 रेडी. तो 5 मिनट में बंदा इस पोजीशन के ऊपर से ए पोजीशन पे आ गया. मगर आप जिसे कह सकते हैं ऐसे वीरान मैदान में खड़े हो, फॉर एग्जांपल अपन लोग कह सकते हैं कि कच्छ का अगर आप देखो तो व्हाइट डेजर्ट है, या कोई डेजर्ट में आप कोई रेफरेंस ही नहीं है जहाँ पे हमें कैसे पता, ये बंदा बोल रहा है मैं तो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है. हाँ, 9 बजे इधर था, 9:05 पे इधर आया, मगर ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो अपन लोग शायद तो कभी कभार जस्टिफाई ना भी कर पाए. बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो कर सको, सपोज मैं इधर अभी खड़ा हूँ और 9:05 में मैं इधर आ जाऊँ, तो किसको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद कि कितना डिस्टेंस चला, इधर उधर का डिस्टेंस का पता चले नहीं, जबकि बॉडी ने तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ही है. तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस चाहिए. कैसा रेफरेंस, देखो 9 बजे ये जो हेतवी या हर्ष या हर्षिल कोई भी है, वो इधर कोई जिसे कह सकते टेम्पल है वहां पे खड़ा है. जस्ट चेक इट, यू कैन सी इट, देयर इज अ टेम्पल. अब 9:05 पे ये बंदा इधर आ जाए तो हमें पता चले यस, पहले ये बंदा मंदिर के पास खड़ा था, अब ये मंदिर से दूर है, मतलब he has traveled certain distance or he or she has performed some motion. So you can see friends, to define motion
we have to think about reference. Particularly in this example, we have considered reference like temple. ये रेफरेंस तो अपन लोग बिंदास फेंकते हैं. आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो भी आप उसको रेफरेंस पॉइंट देते हो कि वो मंदिर के पास आ जाना, वहां पे जिसे कह सकते हैं कि छोटा सर्कल है वहां पे आ जाना, वहां से हमारा घर थोड़ा ही. सो रेफरेंस इज रिक्वायर्ड. सो कीप इन माइंड टू डिफाइन मोशन reference is needed. So here not of temple, but generally in basically what I can say that generally in physics the reference point can be defined by using reference frame. So keep in mind, first of all, anybody wants to represent motion in 1D or linear motion or rectilinear motion, then he or she has to think about reference frame. कोई बोले रेफरेंस तो समझ में आया, रेफरेंस फ्रेम क्या है? So reference frame is a place or a situation from where observer observe the motion of the body. What do you mean by reference frame? Reference frame, that means a place or a situation from where observer observe the motion of body. For example, you are standing here. Ready? You are standing here and there is a bus and someone is sitting inside the bus. अब someone यानी आपको पता चल जाए कोई भी हो, एक कोई इधर बंदा बैठा है. Now you can see that initially bus is situated here. After some time, bus already perform motion. You can see, so this person is already here now. So you are observing the motion of this person who is already sitting inside the, you can see the bus, and bus perform motion. So indirectly I can say, or ultimately I can say, you are observing motion of this body or this person from here. Here that means where you are, you can see that situated at, you are standing already on the surface of the earth. So this earth or ground is called your reference frame. So what is the reference frame for you? For you, reference frame is the earth or ground. Why? Because you are observing motion from where? Obviously from the surface of the earth. So that's why the situation or a place from where observer observe the motion, it is called its reference frame. If you think about opposite, suppose you are inside the bus and someone you can see that perform motion like in this way on scooter or bike. Your bus you can see that either in motion or in rest condition, don't worry, but you are at present time in motion and you are observing motion of any other person, then what is the reference frame for you? Obviously bus, because you are observing motion from where? Obviously from bus or inside the bus. That means bus becomes reference frame for you. So reference frame, that means a place or a situation from where observer observe the motion of the body. Okay, you can select any type of reference frame. इधर तो हम लोग ग्राउंड के ऊपर से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो ग्राउंड बना, बस के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे तो बस बना. मगर जब अपन लोग पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट करेंगे तब ऐसा बस ग्राउंड नहीं होता है. तो ऐसी सिचुएशन में रेफरेंस फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ता है. सो फिजिक्स ने इधर आपको एक बहुत बड़ी छूट दे रखी है. क्या? यू कैन सिलेक्ट एनी रेफरेंस फ्रेम एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट. फिजिक्स ने बोला आप कोई भी रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो. मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस फ्रेम चाहिए और रेफरेंस फ्रेम के सिलेक्शन के लिए फिजिक्स ने कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा है, पूरी छूट दे रखी है. मगर सबसे बेहतरीन रेफरेंस फ्रेम अगर फिजिक्स में है, कोई भी पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट करना हो, वो फिर 1D हो या 2D हो या 3D हो, एक ज रेफरेंस फ्रेम है जो धूम मचाती है. और अपन लोग आज से फिजिक्स में यही रेफरेंस फ्रेम लेंगे. वो कौन सी रेफरेंस फ्रेम है वो मैं बताने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले मैं वापस पूरा ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ वंस अगेन इन वेरी इजी एंड फास्ट लैंग्वेज. What do you mean by linear motion or translatory motion? If body performs motion in such a way that each particle of body travels same distance in given time interval
then body has performed linear motion, or motion of body is called linear or translatory motion. There are two types of linear motion: rectilinear, straight direction motion, it is called rectilinear. कर्वेचर रिलेटेड मोशन कर्वीलिनियर. अपने को चैप्टर 3 में ये डिस्कस करना है, ये नहीं. रेक्टिलिनियर मोशन वी वुड लाइक टू थिंक मोशन इन 1D. ओके, दूसरी डेफिनेशन यहाँ से, आप यहाँ से यहाँ गए, अगर कोई रेफरेंस होना चाहिए तो यू कैन सी, वी कैन ऑल्सो डिफाइन मोशन. बॉडी परफॉर्म्स, यू कैन सी दैट सम मोशन, हाउ कैन यू से, ओके, you can also represent motion in terms of reference, but to provide reference, to select reference, the reference frame is the best way. Or what do you mean by reference frame? Reference frame, that means a place or a situation from where you are observing motion of the body. अगर आप प्लेन में बैठे बैठे कोई नीचे स्कूटर वाला जा रहा है तो आपका रेफरेंस फ्रेम बनेगा प्लेन. अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आप किसी की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम बनेगा ट्रेन. अगर यहाँ पे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम का सिलेक्शन है वो कुछ अलग तरीके से करेंगे. तो कौन सी रेफरेंस फ्रेम है वो अपन लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जरा देखो आप. ओके, तो मैं बाद में मोशन को एक और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट और डिफाइन करूंगा, डोंट वरी. मगर ये कंसेप्ट रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर के सब रेडी हो जाने चाहिए. जो हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है, जरा देखना, मैंने बेस बनाए. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. ओके, रेफरेंस फ्रेम का नाम लिया है. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. रेफरेंस फ्रेम, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. ये आपको फ्यूचर में आने वाला है. व्हाट हैपन इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम? Inertial reference frame, that means reference frame already moving with constant velocity. Non-inertial reference frame, that means reference frame moving with certain acceleration. अगर आप ऐसी बस में बैठे हो जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, पॉसिबल नहीं मगर मैं बता रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस कॉन्स्टेंटली जा रही है, ऐसी सिचुएशन में आप कोई बॉडी का ऑब्जर्वेशन करो मोशन का, तो आप जिस बस में बैठे हो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं. मगर आप जानते हो बस ज्यादातर इनर्शियल होती नहीं है, क्योंकि ड्राइवर है वो थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है, ब्रेक लगाता है, फोर्स अप्लाई, एक्सीलरेटेड टू फोर्स इन सो. तो बस की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, यानी बस एक्सीलरेटेड मोशन करता है. तो कोई भी बॉडी और रेफरेंस फ्रेम अगर एक्सीलरेटेड मोशन करती हो तो उसको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं. चिंता मत करना, ये तो मैंने सिर्फ झलक दिखला जाए, यानी थोड़ी झलक बताइए. फ्यूचर में इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे. हमें सिर्फ रेफरेंस फ्रेम क्या है वो पता होना चाहिए. तो रेफरेंस फ्रेम, दैट मींस अ प्लेस और अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, फिजिक्स ने खुली छूट दे रखी है. मन भावन रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट करो. मोशन को डिफाइन करना हो तो रेफरेंस फ्रेम चाहिए, बिंदास रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट करो. तो अपन लोग रेफरेंस फ्रेम है सिलेक्ट करने जाते हैं. फिजिक्स में सबसे ज्यादा सुप्रीम रेफरेंस फ्रेम है. ऐसी तीन एक्सिस को परपेंडिकुलरली अरेंज्ड कर दो. ये तीन एक्सिस को आप भली भांति जानते हो, एक्स, वाई एंड जेड. These three axes are arranged perpendicular to each other. Then it is called three-dimensional coordinate systems. You know that very well. Three-dimensional coordinate system. X, Y, Z. They all are perpendicular to each other. Like this one. You can see this is the three-dimensional coordinate system. Y, X, and Z. So you can see this is your reference frame. So from today in physics, we always consider three-dimensional coordinate system as a reference frame. What do you mean by three-dimensional coordinate system? It is simply the arrangement of three axes, but three axes perpendicular to each other. And you can see this is the intersection point of these three axes. This intersection point, it is called simply origin point.
रेडी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। एंड ये ओरिजिन पॉइंट है, उसको अपन लोग रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेने वाले फ्यूचर में। जोरदार ये वर्ड धूम मचाएगा। सो ऑलवेज whenever you are dealing with three dimensional coordinate system, then origin point always behaves like a reference point, and origin point is always selected as reference point. उसके पीछे भी एक राज है, वो बाद में खोलेंगे। अब अपन लोग मोशन को दूसरी तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं, जरा देखना। दिस इज एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम and there is a particle P. That's the coordinate of this particle is 1 2 3. That means x y z. What do you mean by these coordinates? Listen, 1 2 3 or x y z. What do you mean by x y z coordinate? First of all, x coordinates, that means the distance of this particle P from x axis. That means अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो x एक्सिस से पार्टिकल है 1 मीटर की दूरी पे है, मैं सपोज मीटर ले रहा हूं। y का मतलब होगा 2, y का मतलब है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम y एक्सिस 2 मीटर, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम z एक्सिस 3 मीटर। यानी कि ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो इधर, जस्ट मिनट, ओके। सो दिस आर द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, रेडी, y, x एंड z। ये रहा पार्टिकल, ये पार्टिकल x से 1 मीटर की दूरी पे, y से 2 मीटर की दूरी पे और z से 3 मीटर की दूरी पे, ये पार्टिकल। तो दिस इज, यू कैन सी दैट पार्टिकल व्हिच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम x एक्सिस, 2 मीटर फ्रॉम y एक्सिस एंड 3 मीटर फ्रॉम z एक्सिस। दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। ये याद रखना है आपसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम मोस्ट टाइम पे, ओके। एंड देयर इज अ क्लॉक, एक मैंने क्लॉक रख दी, ओके। क्लॉक में अपन लोग जानते हैं ऐसी क्लॉक आती डिजिटल, जिसमें रेड कलर का, जिसे कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट रखा 900, देखो अभी क्लॉक में 9 बजे, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 9 o'clock, एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्टिकल एट 9 o'clock। ये कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 2, z कोऑर्डिनेट है 3, ओके। देखना, अब आपको बोले आप जाओ चक्कर मार के आओ, तो अपन लोग चक्कर मार के आते हैं। ओके, चक्कर मार के आए, फिर बोले तब तक 5 मिनट चली गई। 9:05 का फंडा अपन लोग इधर ड्रॉ, घड़ी वापस यही घड़ी 9:05 हो गए। देखो घड़ी में 5 मिनट है, तो घड़ी बता रही है 9 o'clock and 5 minutes। अगर आप 5 मिनट के बाद आते हो तो आपको ये कोऑर्डिनेट चेक करने हैं। If the coordinates of this particle remains same, that means 1 2 3 का 1 2 3 जरा, मतलब ये पार्टिकल कहाँ भी नहीं गया है, वो वहां का ही रहा है, मतलब वहां का वहां ही रहा है, मतलब it has not performed any motion. Particle has not performed any motion. Why? Because after 5 minutes, check the coordinates 1 1 2 2, z coordinates 3 3. In short, particle, you can see that remain in rest position, it has not performed any motion, तो इसने कोई मोशन परफॉर्म नहीं की। मगर आप 5 मिनट के बाद आते हो और आपका कोऑर्डिनेट से हो जाता है 2 2 3, जस्ट चेक इट, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, y coordinate and z coordinate same, but check the x coordinate becomes 1 to 2, that means particle has traveled 1 meter distance, but in which direction? In the direction of x axis। पार्टिकल यहाँ से, ये पार्टिकल देखो यहाँ पे था, वहां से 1 मीटर की दूरी पे इस साइड खिसक गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, this is 1 meter। Why it is in the direction of x axis, and how can you say it has traveled distance in the direction of x axis? हमें कैसे पता चले कि उसने x axis की डायरेक्शन में मूव किया है? ये कोऑर्डिनेट चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। कोऑर्डिनेट चेंज हुआ मतलब पार्टिकल ने मोशन की। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? x, मतलब पार्टिकल ने x डायरेक्शन में मोशन की। कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? 1 में से 2, मतलब पार्टिकल ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर इधर 3 होता तो 1 2 का 3, तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो यू कैन से फ्रेंड हियर ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज्ड, इट इज x कोऑर्डिनेट। इफ one coordinate, only one coordinate of this particle changes, that means particle has traveled motion in one dimension। इसको कहते हैं motion in one dimension, that means particle has traveled
motion only in one direction. Here only in the direction of which axis? X axis. तो ये बन गए आपका मोशन इन 1D. अगर 5 मिनट के बाद आते और कोऑर्डिनेट से वो 2 to 3 के बदले 2 3 और 3 हो जाता तो मतलब पार्टिकल का देखो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ 1 to 2, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया 2 to 3, ओनली z कोऑर्डिनेट्स रिमेन कांस्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स? सो ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये पार्टिकल ने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी 2 to 3 यानी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है. कोई बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखो ये रहा, ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करे तो एक्स भी चेंज हो जाए, वाई भी चेंज हो जाए. दिस टाइप ऑफ मोशन इफ two coordinates are changed, then this type of motion of particle is called motion in 2D. It is also called motion in plane. Super. तो देखो मैं आपको इधर एक मोशन बता रहा हूँ, ये जिसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकल ए लाइन के ऊपर मोशन करे तो इसको कहते हैं मोशन इन 1D. अगर पार्टिकल ऐसे मोशन शुरू करे तो मोशन इन 2D. सिंपल स्टोरी है, आप कैरम खेल रहे हो, कैरम के ऊपर कोई चींटी आ गई और वो चींटी है वो कैरम की बॉर्डर के साथ ही मोशन करे, चारों चार एक कैरम ऐसा आता है और चींटी ऐसे मोशन करे तो इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन. रेडी? मगर चींटी यूं भागने लगे जैसे तो इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन. ओके, व्हाट हैपन इन 3D वो बाद में देखते हैं. अब अपन लोग देखते हैं 9:05 पे अगर आप आते हो और इसके तीन कोऑर्डिनेट्स 2 3 4 हो जाए तो that means 3 coordinates already get changed. That means particle has traveled distance in the direction of x axis, in the direction of y axis, in the direction of z axis. In short, motion in 3D. तो इधर ये जो चींटी पहले ऐसे चल रही थी तो 1D, कैरम के ऊपर चलने लगी तो 2D. सडनली चींटी को पांखें आ जाती है यानी कि पंख लग जाते हैं और चींटी उड़ने लगे तो it becomes motion in 3D. You can see. So 3 dimensional. So friends, this is, you can see that the supreme point. You can just check the coordinates and by analyzing the coordinates one can think about the type of motion. If only x coordinate is changed, then motion in 1D. If there are 2 coordinates x and y are changed, then 2 dimensional or motion in plane. If all coordinates, 3 coordinates are already changed, then it is called motion in 3D. मगर अपन लोग तो अभी मोशन इन 1D में रहेंगे. दैट मींस अपने केस में सिर्फ एक ज कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, वो होगा जिसे कह सकते x या y और z, मगर कोई भी एक ज मोस्ट आईएमपी. तो इधर आपने देखा ये अल्टीमेट डिस्कशन में 2 पॉइंट्स का पंच जोरदार. नंबर 1, एक तो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. आज से फिजिक्स में एक ज रेफरेंस फ्रेम धूम मचाएगी, वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जनरली ओरिजिन पॉइंट को जो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे सिलेक्ट करेंगे. क्यों रेफरेंस पॉइंट चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया वो हेतवी वाला, हर्सिल वाला फंडा कि कोई बंदा मोशन करता है तो रेफरेंस फ्रेम चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए. तो रेफरेंस पॉइंट के बिना मोशन को डिफाइन करना नामुमकिन है. तो इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट के लिए ओरिजिन पॉइंट को रखेंगे ऑलवेज. क्यों रखेंगे अभी बताता हूँ, डोंट वरी. और इधर एक मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो मोशन इन 1D, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ x और y तो 2D, तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए तो मोशन इन 3D. ओके, सो इसके ऊपर से अपन लोग मोशन को और डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन बॉडी और पार्टिकल, व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, देखो ये इधर P से P डैश, सपोज न्यू पोजीशन P डैश. व्हेन बॉडी और पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देखो टाइम के साथ चेंज किया 9 to 9:05, 9 o'clock इधर, 9:05 इधर, और विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड, यू कैन सी दैट linear motion, or I can say body has performed some motion. Most time we ready when body changes its position with respect to time or any reference point, then called motion, or we can say that then it is called that body has performed motion. So most time the 2 definitions of, you can see the motion. Number 1, when body, you can see, changes its position with respect to time or with respect to any reference point, then it is called, we can say that
motion of body and body has performed some motion, then it is body is called in motion. ओके फ्रेंड्स, दूसरा मैंने डेफिनेशन बताया मगर बाद में कौन सा लीनियर और ट्रांसलेटरी, वो मोशन के टाइप था. जनरल मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, इन विच सर्कमस्टेंसेस वी कैन से बॉडी हैज परफॉर्म मोशन और बॉडी इन मोशन. अपने को कैसी सिचुएशन में और कैसे कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है, व्हेन body changes its position with respect to time or with respect to any reference point, then body is called in motion. Then body is called in motion. Then there are three types of motion: motion in 1D, motion in 2D, and motion in 3D. Motion in 1D, it is called linear motion, it is called rectilinear motion, it is called translatory motion. What do you mean by linear motion? देखते जाना, आप हर एक पत्ते खोलते जा रहा हूँ. Linear motion. Linear motion, that means if all particles of body travel same distance in same time interval or in given time interval, then the motion of body is called linear motion. There are two types of linear motion: rectilinear, curvilinear. रेक्टिलिनियर का दूसरा नाम है मोशन इन 1D और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो ये मैंने मोशन का बेसिक डिस्कशन करवाया. वापस इतना सब कुछ डिस्कस हुआ, वो सब कुछ मैं परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इतने पंचेस आपके दिमाग में होने चाहिए. नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन. ओके, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाना है. ओके, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो धीरे धीरे, मगर मैं अच्छी तरह बोल रहा हूँ ताकि आप साथ में लिख भी सकते हो. काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं, नोटबुक साथ में रखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को तुरंत नोट करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time or with respect to any reference point, when body changes its position with respect to time or with respect to any reference point, then body is called in motion. Then body is called in motion. Ready? Okay. Then you know that very well. There are three types of motion: motion in 1D, 2D, and 3D. But motion in 1D, it is called linear motion or translatory motion. Motion in 1D, it is called linear motion or translatory motion. What do you mean by linear motion or translatory motion? If particles of body travel equal distance in given time interval, then this type of motion of body is called linear motion or translatory motion. Okay, now there are two types of linear motion: rectilinear, curvilinear. So what do you mean by rectilinear motion? Body travels motion in one dimension or straight line, along the straight line, then it is called rectilinear. Ultimately motion in 1D का मतलब होगा rectilinear motion. तो अपन लोग अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे. नेक्स्ट, कोई भी बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस फ्रेम चाहिए. रेफरेंस फ्रेम है अपन लोग कौन सी लेंगे? जनरली 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मोस्ट टाइम भी, और रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ओरिजिन पॉइंट ही लेंगे. क्वेश्चन है क्यों ओरिजिन पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करने का एक रीजन, ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट इज सिलेक्टेड एज रेफरेंस पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ओरिजिन पॉइंट? 0 0 0. तो कोई बोले मगर इससे होगा क्या? होगा दोस्तों ये कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 0 0 का सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना उसके साथ बहुत इजी होता है. इसीलिए ये ओरिजिन पॉइंट है वो दमदार रोल प्ले करता है एज ए रेफरेंस पॉइंट. सो व्हाई ओरिजिन पॉइंट इज सिलेक्टेड एज रेफरेंस पॉइंट? बिकॉज ऑफ इट्स coordinates 0 0 0, and mathematical simplification becomes very easy. That's why. So friends, the first layer of motion in 1D we have discussed. A to Z डिस्कस किया, मगर काम के जो पॉइंट है मैंने अभी रिवाइज किए उतने याद रखने हैं. ये सब तो आपको बहुत ही अच्छी तरह पता चला, इसलिए डिस्कशन किया. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द टू मोस्ट टाइम की पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ मोशन. और आज के लेक्चर में ये धूम मचाने वाले हैं. सो अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं. नंबर 1,
path length or simply displacement. Okay, path length and distance, total distance. तो मोशन का हमने डिस्कशन किया। अब अपन लोग शुरू कर रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि मोशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ही मस्त चैप्टर, और अपन लोग पूरे डिस्कशन के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ, JEE नीट A to Z शॉर्टकट्स के साथ जाएंगे। मैं जितना करवाता उतना कर दो, सिंपली चैंपियन, नथिंग। सो नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट डिस्टेंस। इसको बहुत ही अच्छा नाम दिया है पाथ लेंथ। सो व्हाट डू यू मीन बाय पाथ लेंथ? सो पाथ लेंथ, दैट मीन्स the total distance traveled by body. Total distance is traveled by body in a given time interval. In a given time interval is called path length. So friends, from today, path length, that means, what do you mean by path length? So path length, that means the total distance traveled by body. You can see total distance traveled most time पे गिवन टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्टेंस, पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करे उसको कहते हैं पाथ लेंथ। तो इधर अपन लोग एक और क्वांटिटी को डिस्कस करना चाहते हैं साथ में, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों क्वांटिटीज पैरेलली जाएगी तो मजा आएगा। सो डिस्टेंस और पाथ लेंथ का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? एनीबॉडी? जो भी आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, यू कैन गिव आंसर। मगर भले आपका आंसर मेरे पास ना पहुंचे, मगर उसके पास तो पहुंचेगा, उसको पता चल जाएगा सही है कि रॉन्ग। यस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी in a given time interval is called displacement. Change in position of body in given time interval, it is called displacement. Path length, total distance. Displacement, change in position of a body. So don't forget, displacement का दूसरा मतलब निकलता है, देखो काफी लोगों को ये पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है the shortest distance between initial position IP and final position FP of body। हैं, कोई बोले ये क्या समझा रहे? ये देखो इधर, यहाँ से पार्टिकल निकला और यहाँ पे आके रुका, दिस इज इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बस। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड सिंपली डिस्प्लेसमेंट। Because what do you mean by displacement? Change in position of body in given time interval is called displacement. But whenever you would like to find mathematically displacement, then you have to apply this definition: shortest distance between initial position and final position of body, it is called displacement. This is initial position, this is final position, बस ये shortest distance है, उसको कहते हैं displacement. Okay friends, now next point, distance और path length में next point ऐड करते हैं। Path length, what is the unit of path length? Unit meter. So what is the unit of displacement? Meter. दोनों सेम। तो डिफरेंस क्या है? Yes, this is scalar quantity, while this is, you know that very well, vector quantity. Scalar quantity, this is called vector quantity. कोई बोले ये सब तो कभी कभार सुना है। यस, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अपन लोग चैप्टर 4 में धूम मचाने वाले हैं, मगर फिर भी अभी थोड़ा झलक दिखलाया जाए। स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस द क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय only its magnitude. There is no requirement of direction. Scalar then only magnitude. While to represent vector quantity, we have to think about magnitude along with direction. तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही धूम मचाएगा, वेक्टर वर्ड आएगा तब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये दोनों भाई है, दोनों भाई में डिफरेंस क्या है? इसको आप दो थप्पड़ मारो ना तो भी स्केलर बोलेगा चलेगा, और इसको जरा भी बोलोगे ये खींच के मारेगा, मतलब ये सीधा है और ये इतना ही टेढ़ा है, क्योंकि डायरेक्शन ऐड होगी। और डायरेक्शन ऐड होगी, क्या प्रॉब्लम होगा?
वो चैप्टर 4 में पता चलेगा। सो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, डिस्टेंस और पाथ लेंथ is always positive. I will write here always positive. कभी भी पाथ लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि ये जोरदार वर्ड डिस्प्लेसमेंट आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो ये जोरदार, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि पाथ लेंथ तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का सिंबल है, देखना, दिस इज यू नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप। हाँ, सो ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जोरदार डिफरेंस है, डोंट फॉरगेट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पाथ लेंथ का एक और टॉपिक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ता ही जा रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पाथ लेंथ ऑलवेज increases। देखा, while here with respect to time displacement either increases or decreases। जोरदार, ये जबरदस्त पॉइंट है। सो डोंट फॉरगेट, with respect to you can see that time what happened, path length always increases, distance always increases, that's why positive, while displacement increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है। वो कैसे समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, और एक लास्ट पंच है, वो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि अप्लाई बाद में करते हैं। सो दिस आर द टू मोस्ट टाइमली पॉइंट्स एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ एनी बॉडी। नंबर 1 डिस्टेंस और पाथ लेंथ, and number 2 displacement। चलो A to Z देखते हैं। What do you mean by path length? To find path length, always you have to think about total distance traveled by body in a given time interval। ये स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए दिमाग में। While displacement is the change in position of body in a given time interval। It is also called, displacement is also shortest distance between initial position and final position of body। So path length always total distance traveled। Unit meter, common point. This is path length is the scalar quantity, that means only magnitude is required, while displacement is the vector quantity, that means to represent displacement along with magnitude, direction is also needed, that's why it is typical। Path length always positive, while if you find displacement, then answer of displacement either positive, negative or zero, कुछ भी हो सकता है most time पे। With respect to time, टाइम के साथ पाथ लेंथ ऑलवेज बढ़ेगा, पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और समटाइम्स बिकम जीरो, वी डिस्कस। सुपर, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में हाथ किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में पाथ लेंथ ऑलवेज बढ़ जाए। सो डोंट फॉरगेट, ये मैं इधर एक पंच मार रहा हूं, JW नीट, मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ PL। अब समझ जाने का, पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड यानी मोड, यू नो दैट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, यू कैन सी दैट। मोस्ट टाइम पे पाथ लेंथ अपन लोग मैग्नीट्यूड हटा दे क्योंकि वरना माइनस है नहीं। सो पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट जितना हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं, डोंट फॉरगेट। तो मोस्ट टाइम पे पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन है, वो धूम मचाने वाली है फ्रेंड्स। सो एनालाइज एटलीस्ट वन टाइम एंड देन वी स्टार्ट नेक्स्ट लेवल। ओके फ्रेंड्स, सो अपन लोग अब जिसे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आज के राउंड में पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपन लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। मगर हर एक बंदा इधर देखे, आज से ये सब कुछ चकाचक हो जाना चाहिए, जोरदार। ये चैप्टर में पहले से ही अलर्ट रहना है, बाद में करूंगा, बाद में करूंगी,
रह जाओगे। वक्त किसी की राह नहीं देखता दोस्तों। देखो वक्त के लिए मैंने एक जगह पे सिस्टमेटिकली पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वक्त आपको दो सिस्टम देता है। नंबर वन, अगर आप अपने आप बदल जाओ, अपने आप वक्त के साथ बदल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वक्त की हेल्प लिए बिना खुद बदल जाओ तो हैरान परेशान नहीं होगे। मगर वक्त ने अगर आपको बदला तो बहुत हैरान परेशान होना पड़ेगा। देखो वक्त के बिना भी आप बदल सकते हो, और वक्त बदले आपको वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए वक्त को मौका मत दो कि वो आपको बदले। अभी से अपने आप शुरू हो जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया तो वेरी गुड, ना समझ में आए तो उससे आगे बढ़ने का, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें और लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि इजी न्यूमेरिकल से शुरू करता हूँ, बराबर। चलो, वन पर्सन स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम ए। वी आर थिंकिंग अबाउट पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस A to B, then B to C, and then C to D. चलो, this is 3 kilometer, this is 2 kilometer, and this is 3 kilometer. So first question, what is the path length of this person? So what do you mean by path length? To calculate path length, we have to calculate total distance. So what is the total distance traveled by this person? A to B, B to C, and C to D. That means 3 kilometer plus 2 kilometer plus 3 kilometer. That means 8 kilometer is the path length. Now second question, what is the displacement? चलो, what is the displacement? So how can you find displacement? Displacement के लिए मैंने एक मेथड दी है। Don't apply definition. Change in position of particle is called displacement. Definition के लिए अच्छा, मगर जब भी डिस्प्लेसमेंट का कैलसी करना हो, that means to calculate displacement you have to think about 2 points. First of all, identify initial and final positions. What is the initial position? A. This is initial position. What is the final position? This is D. D is the final position. What is the shortest distance between initial and final position? This is the shortest distance, you can see. So this is your displacement, you can see. So displacement, that means only AD distance. So what is this AD distance? Anybody? Analyze the diagram and tell me. Obviously 2 kilometers, so 2 kilometer. So what is the displacement of this particle? It is 2 kilometer. तो ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पर्सन, चलो स्टार्ट। डेटा एक बंदा लिखेगा, पर्सन मूव्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन। राइट डाउन। पेन पेंसिल हाथ से साथ में होना चाहिए, नोटबुक, कैलसी और दिमाग। चारों पॉइंट ना हो तो मैं पेरेंट्स के फोन पे आएगा आपको फंडा। 1 सेकंड स्टार्ट। जो ना हो फटाफट ले ले। A person moves 3 kilometer distance in north direction. 3 kilometer distance in north direction. Then 2 kilometer distance in west direction. 3 kilometer in north direction. 2 kilometer in the direction of west direction. Then 5 kilometer. Then 5 kilometer in south direction. Once again, a person travels or moves 3 kilometer distance in north direction, then 2 kilometer in west direction, then 5 kilometer in south direction. Then find its path length and find path length and displacement of this person. Start. Find path length and displacement. Take your time. Okay. तो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई की होगी। मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर गिवन डायग्राम यू कैन सी दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ पर्सन। नाउ ही मूव्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस। दिस इज 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ ये इधर ड्रॉ कर ही देने का। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो हाउ मेनी किलोमीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट? 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस। This is 2 kilometer in the direction of west. Then 5 kilometer distance in south, downward. So 5 kilometer, you can see that this is 5 kilometer in the direction of south. This is final position. बस रुक जाते हैं। Now what is the path length? First of all, path length.
So path length, that means total distance traveled by this person. What is the total distance? 3 kilometer plus 2 kilometer plus 5 kilometer. So 3 plus 2 plus 5. So 10 kilometer is the total distance traveled by this person. In short, what is the path length for this person? 10 kilometer. Now we would like to find displacement. ये इस न्यूमेरिकल का चिकना खेसा. टेल मी. चलो जिसने फाइंड किया वो चेक करे, सही हो तो खुद को कांग्रेचुलेशन. देखो क्या करना, सही आंसर आया तो कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं, यस आई हैव डन इट, और रॉन्ग आंसर आया तो यही मुक्का सर पे मारना है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? वेरी इजी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा. देखो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इधर से सब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 किलोमीटर हो तो ये भी 2 किलोमीटर. ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 किलोमीटर, तो ये रेक्टेंगल के मुताबिक ये भी 3 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर में से ये 3 किलोमीटर गया, सो टोटल 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर. देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस आल्सो 2 किलोमीटर बिकॉज 3 plus 2 5. रेडी? तो अब ये ट्रायंगुलर दिख रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. एंड हाउ कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस? ऑब्वियसली बाय अप्लाइंग Pythagoras. So it is, you can see that 2 square under root 2 square plus 2 square, and under root 4 plus 4 8. So what is your displacement? It is under root 8, that means 2 root 2 kilometer. कैसे 8 को स्प्लिट कर दो, 4 टू जा 4 का रूट 2, so 2 root 2 kilometer. That's your answer of this numerical in terms of displacement. तो पता चला. देखो दोस्तों इस तरह की न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. राइट डाउन वन मोर. अब जो क्वेश्चन है वो मस्त है, सो ट्राई करने की है. राइट डाउन, लिखने का ही है अभी. चलो, अ कार मूव्स, एक कार है, कार मूव्स along semi-circular path. A car moves along semi-circular path from A to B. A car moves from A to B but along semicircular path. A car moves along semicircular path from A to B. Then find the ratio of path length. Then find the ratio of path length to displacement for this car. Then find the ratio of path length to displacement for this car. Radius of semicircular path is capital R. Think. Find the ratio of path length to displacement for this car. And what is the ratio? Ratio path length to displacement. ये आपका टारगेट है. चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो. Okay friends, so now we would like to solve it. Just concentration required. This is your point A, this is your point B, and this is semicircular arc. You can see this is your semicircular arc. You know that very well. Semicircular arc of radius R. This distance capital R. Okay, what's your target? Your target to find the ratio of path length to displacement. First of all, find out path length. So path length, and car moves along semicircular path. car इधर ऐसे नहीं जा रही, कार ऐसे जा रही. देखो this is the direction of motion of car along semicircular path. तो कार यहाँ से यूं यहाँ पे आ रही है. So what is the distance traveled by this car? This distance. How can you find this distance? Check it. कुछ लोगों को पता चल गया, ना पता चले वो देखो ये सर्कल है. अगर ये पोर्शन फाइंड करना हो तो ये कंप्लीट सर्कल का पोर्शन कितना होगा? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल? टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, दैट मींस पेरीमीटर. सो ये अपन लोग जानते हैं टोटल सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई r. तो ये तो हाफ ही होगा ना ऊपर का पोर्शन. सो पाथ लेंथ होगा पाई r. पता चला? हाफ ऑफ 2 पाई r, इतना ही. ये हटा दिया, देखो इतना. रेडी? नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस इज वेरी IMP वर्ड. एनीबॉडी? डिस्प्लेसमेंट. What is the meaning of displacement? The shortest distance between initial and final position. What is the initial position? Check it. A is the initial position.
बी इज द फाइनल पोजीशन और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कोई भी सर्कल में ये जो पोर्शन होता है क्या होता है, डायामीटर। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायामीटर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट, it is pi r upon 2r, r cancel, so pi by 2 it's the right answer. If you obtain pi by 2 answer, then heartily congratulations friends, very superb. तो ये सुप्रीम न्यूमेरिकल हमने एक और डिस्कस किया, यू कैन सी। अभी एक आध और न्यूमेरिकल अपन लोग डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, ट्राई करना है। चलो रेडी, समझ में आ रहा है। पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डोंट टू फॉरगेट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो जोरदार ही। ओके, तो मैं अभी आपको एक बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, यू कैन सी हियर particle start its journey from A. There is a particle start its journey from A. It moves from A to B and then B to C. A to B 20 meter, B to C 20 meter. पार्टिकल ने जर्नी कहाँ से शुरू की, A से B गया, एरो बता रहा है देखो, B से C जा रहा है, ये पूरा रेडी। And this is equilateral triangle. Then find the ratio of path length to displacement. Start. If particle moves from A to C, then find the ratio of path length to displacement for this particle. Start. Start मतलब start ऐसा. Try to solve it. Okay, वीडियो पॉज करके आपने सोल्व किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय पाथ लेंथ? बिंदास दिमाग में बोलो, पाथ लेंथ दैट मींस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल। अगर पार्टिकल ए से बी होते हुए सी पर आए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 + 20, सो दिस इज 20 + 20। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इधर इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है सी, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी 20 होगा क्योंकि मैंने बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 20, सो 40/20 यानी 2 इज द राइट आंसर। रेशियो ऑलरेडी 2:1 रेशियो पूछा है, तो 2:1 यू कैन सी। तो फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू कैन सी। अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और हो गया मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी JEE नीट में पूछा हुआ है। दिस इज द कॉम्पिटिटिव, सो स्टार्ट। मोस्ट IMP इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, AFMC में जो मेडिकल कॉलेज बी ग्रुप वाले एग्जाम देते हैं AFMC, इसमें पूछा हुआ है। राइट डाउन। एन एथलीट यू नो दैट एन एथलीट moves along circular path. An एथलीट होता है अपन लोग जानते हैं, जैसे कि ये जो हुसैन बोल्ट और वो सब। ओके, एन एथलीट मूव्स along circular path of radius capital R. An athlete moves along circular path of radius capital R and complete one rotation in 40 seconds. An athlete moves along circular path of radius capital R and completes one rotation in 40 seconds. Then find the displacement of this athlete. एक रोटेशन के लिए 40 सेकंड। Then find the displacement of this athlete after 2 minutes and 20 seconds. Find the displacement of this athlete after 2 minutes 20 सेकंड। मस्त क्वेश्चन है, तो शुरू करो वंस अगेन। ओके, ट्राई टू अप्लाई लॉजिक एंड टेल मी द आंसर। आंसर आ गया मतलब आप समझो रेडी, जबरदस्त। आप ट्राई करो, डोंट वरी, वीडियो पॉज कर सकते हो, डोंट वरी। अगर ट्राई करनी है ये क्वेश्चन दमदार, आज का लेक्चर का दमदार खिलाड़ी।
Okay friends, तो solve करते हैं. Just concentration required. This is, you can see that circular path. Ready? Circular path or circular track is already shown here. This is diameter. Obviously this distance 2r. Okay, this is, you can see that starting position of an athlete. Athlete यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं. देखो ये दौड़ना शुरू. Just concentration required. दौड़ता दौड़ता यहाँ पे आएगा, यानी आधा सर्कल कंप्लीट किया, फिर दौड़ता हुआ वापस यहाँ पे आता है. दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी. इफ ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन हाफ रोटेशन, बी टू ए, दैट मीन्स कंप्लीट रोटेशन. तो ए से बी, बी से ए तक आने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगा? 40 सेकंड. यानी एक चक्कर घूमना हो तो 40 सेकंड लगता है. सो फॉर वन रोटेशन, whatever the time taken by him, it is 40 second. Question देखो, find the displacement of this athlete after displacement. We have to find after 2 minute 20 second. सबसे पहले अपने पास जो भी आंसर है रेफरेंस है वो 40 सेकंड है. देखो यानी जो भी क्वेश्चन है वो उसमें मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 2 मिनट यानी कितनी सेकंड्स होगी? 120. 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड के बाद आपको पहले तो फाइनल पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए दो चीजें आईएमपी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन तो ऑब्वियसली ये है क्योंकि ए से जर्नी शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट. देखो ए से इनिशियल पोजीशन स्टार्ट, यहां से उसने दौड़ना शुरू किया. अपन लोग जानते हैं 40 सेकंड होगी मतलब एक साइकिल पूरा. 40 सेकंड होगी मतलब एक साइकिल पूरा. रेडी? अब दूसरी 40 सेकंड होगी यानी 40 सेकंड एक रोटेशन, दूसरी 40 सेकंड दो रोटेशन. ओके, तो टोटल कितनी सेकंड हो गई? 80. अपने को 140 सेकंड तक जाना है. अब ये तीसरा राउंड लगाएगा, तीसरा राउंड लगाएगा तो हो जाएगी 40 सेकंड. तो 3 राउंड्स के बाद बंदे की फाइनल पोजीशन ढूंढो. इनिशियल पोजीशन ए, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड. तीसरे राउंड के बाद बंदे की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. अब मैं रुक जाता हूं. अगर यही क्वेश्चन पूछते find the displacement of this athlete after 3 rotations, then what's the answer? 0. क्यों? क्योंकि initial position and final position same. So what is the distance between initial and final? 0. From today, don't forget, whenever initial position and final position of any body or motional body same, then its displacement 0. मगर यहाँ पे हमें 120 सेकंड हुई. देखो अभी तो 120, अभी और 20 सेकंड बाकी, क्योंकि हमें 140 सेकंड यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो देखो 40 सेकंड, 80 सेकंड, 120 सेकंड. 120 में कितनी सेकंड रखे? 20. तो ये 20 सेकंड इधर आएगा. देखो यानी एग्जैक्ट 3.5 रोटेशन कंप्लीट करेगा. 40 सेकंड, 80 सेकंड, 120 second, and this is, you can see that 140 second. This is final position. Okay, तो अब final position है, initial position है. What is the shortest distance? This distance. So what is the displacement of this athlete after 2 minutes and 20 seconds? So first of all we have found initial position, and then we have to find position of athlete after 2 minutes 20 seconds. 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड के बाद एथलीट यहाँ पे होगा. चेक करो क्यों, पता चला कि नहीं? 120 सेकंड में 3 राउंड, बाकी की 20 सेकंड के लिए ये. अगर ऐसा 2 मिनट 40 सेकंड बोला होता तो वापस इधर ही आ जाता. मगर अब इधर है तो ये डिस्टेंस होगा यानी ये डिस्प्लेसमेंट होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट इज डायमीटर. सो आंसर आएगा 2r. सुपर. ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है मेडिकल कॉम्पिटिटिव में. ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, डोंट फॉरगेट. तो आज के लेक्चर में जितना चला उसको फास्ट ट्रैक देखते हैं. थियोरेटिकल पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हेन बॉडी changes its position with respect to time or any reference point, then body is called in motion. There are 2 types of motions. 3 types. Motion in 1D, motion in 2D, motion in 3D. Motion in 1D is called linear motion, motion in 1D is called rectilinear motion. But what do you mean by linear motion? First of all,
linear or translatory motion, that means if particles of body travels equal distance in equal time interval, then body has performed linear motion. There are two types of linear, rectilinear, curvilinear. Rectilinear का मतलब होगा motion in 1D. If body perform motion in straight line, then it is called rectilinear motion. Okay, you know that friends. To explain motion or to locate the position of any particle, best method is the selection of reference frame. And which one is the most preferable reference frame in physics? Three-dimensional coordinate systems. Okay, and origin point is generally selected as reference point. Next point, distance and displacement. Okay, distance का मतलब है path length, displacement अलग quantity, path length total distance, displacement change in position, path length scalar, displacement vector, path length unit meter, displacement unit meter, path length always positive, displacement positive, negative, zero, path length always increases with time, displacement either increases or decreases, most time पे. तो फ्रेंड्स पाथ लेंथ फाइंड करना हो तो टोटल डिस्टेंस, मगर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये झलक देख लो चैप्टर का, ये तो अभी हमने किनारे पे पैर रखा है, पूरा समुद्र बाकी है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा, तैरने के लिए रेडी हो जाओ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. थैंक्स.